Good morning, students. Today we'll start with the next topic of bio, that is the growth in human beings. So there are four main different phases. First is the infancy, second is the childhood, third is the adolescence, and last is the adulthood phase. So what about infancy? Infancy is the first and rapid growth phase which start as soon as a baby is born and lasts for about 2 years. So second is the childhood. So childhood begins from the age of 2 and lasts till the age of 11, 12 years. So growth in this phase slow and steady. So adding to height and weight. So एक बात याद रखो कि इस पीरियड में क्या होना है, हाइट और वेट क्या है, बढ़ना है. Last third is the adolescence phase. So what happened this phase? This period of physically differentiation boys and girls. इस phase में physically boys और girls का पता चले, that phase is called the adolescence, that start from the 11 12 till 18 19 years. So इस phase में stage आनी, that is the puberty. जो boys और girl physically और mentally और reproductively mature हो जाएं, right? So they are able to reproduce. So this period is called the puberty period. Last is the adulthood. Adulthood का मतलब जब emotionally strong हो जाए person, जब उसको पता चल जाए कि ये right path है, मैंने इसके ऊपर ही चलना है, उसको फ्यूचर का पता चल जाए कि क्या मेरे राइट और रॉन्ग चीज़ें हैं, राइट. सो उस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज इमोशनली स्ट्रॉन्ग. वो किस स्टेज में आएगी? लास्ट अडल्टहुड स्टेज में. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द अडोलसेंस एंड अकम्पनिंग चेंजेस. सो अडोलसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने पढ़ना है. सो पहली बात ये, अडोलसेंस किस पीरियड में आता है? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो फेज है, दैट इज कॉल्ड द अडोलसेंस फेज, राइट. इट इज अ ट्रांजिशनल फेज between childhood and adulthood and will attain the sexual maturity, right. First जो हम करेंगे that is the physical change. So physical change में क्या आना है? The physical or biological change you can see that begin in the body during this period cause girls to grow into young women and boys grow into the young men, right. So first point हम करेंगे overall growth and increase in height. So overall growth and increase in height, what happened in this? So this fruit growth and maximum increase in the height. Growth of long bones, that is the growth of the legs and arms, you know it's very well. By the age of 18, both boys and girls reach their maximum height. So 18 years तक उनकी maximum height हो जाती है. Next is the changes in the body shape. So body shape change हो जाती है. So girls में क्या हो जाता है कि जैसे उनकी जो waist है, वो pelvic girdle जो होती है उसका region क्या हो जाता है? Narrow. So in boys, muscles of the body that become strong. Boys के muscles strong हो जाते हैं. Next is the change in the voice. So very important. वॉइस का क्या है? इन केस ऑफ द वॉइस देर इज लेरिंग्स. सो आपके नेक रीजन में, गले में जो थ्रोट में एक पार्ट है, दैट इज द लेरिंग्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एटम. सो वॉइस में अडोलसेंस पीरियड में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे जो उसका जो थ्रोट है वो ऐसे लगेगा कि बाहर को बल्जिंग जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है. इट मीन्स कि दैट बॉय इज अडोलसेंस स्टेज. वो बॉय क्या है? अडोलसेंस स्टेज में है, राइट. सो नेक्स्ट इज द गर्ल्स. सो गर्ल्स की वॉइस जो है श्रिल हो जाती है. सो बॉयज़ की आवाज़ क्या हो जाती है? वेरी हार्श वॉइस हो जाती है उनकी. गर्ल्स में जो लेरिंग्स है वो क्या रहता है? स्मॉलर एज कम्पेरेटिव टू द बॉयज़. सो नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन द स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड. सो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह वो भी क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अपेयरिंग, जिसके कारण क्या एक्ने की प्रॉब्लम रहती है बॉयज़ में और गर्ल्स में, राइट. सो अडोलसेंस पीरियड में ज़्यादातर क्वेश्चन ये होता है कि मैम इस पीरियड में क्या है कि जो पिंपल्स क्यों होने शुरू हो जाते हैं? बिकॉज दैट शो द प्यूबर्टी पीरियड. सो नेक्स्ट इज द सेक्शुअल मेच्योरिटी. So sexual maturity, the sex hormone of the pituitary initiate the maturation of reproductive organ which are present the body since birth but remain non-functional till puberty. सो प्यूबर्टी से पहले ये क्या? नॉन फंक्शनल. मगर जब प्यूबर्टी अडोलसेंस पीरियड में जब वो प्यूबर्टी पीरियड आ जाता है तब वो क्या हो जाते हैं? फंक्शनल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो प्यूबर्टी पीरियड में जो टेस्टिस हैं इन बॉयज स्टार्ट सिक्रीटिंग द मेल हार्मोन. वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्टोस्टेरोन. अब लर्न कैसे करना है? टेस्टिस. सो हार्मोन उसी नेम के जैसा, टेस्टोस्टेरोन, सिंपल. सो फीमेल में क्या है? दैट इज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट. सो नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर में हमने पॉइंट करना है चेंजेस इन द बॉडी
चेंजेस इन द बॉडी दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम ए फीमेल, जो मेल और फीमेल को अलग सेपरेट करे देखने से, उसको कहते हैं सेक्शुअल करेक्टर्स। एक हम करते हैं प्राइमरी सेक्शुअल करेक्टर्स, ये हम 10th स्टैंडर्ड में करवाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर मेन सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, bulbourethral glands. So these are the sexual primary sexual characters, right? So उसमें हम secretions की बात करते हैं। मगर secondary sexual तो बाहर देखने से, अपीयरेंस से पता चले बॉयज़ और गर्ल्स का, दैट इज़ द सेक्शुअल अपीयरेंस। जैसे बॉयज़ में शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, हिप जो है गर्ल्स की वो क्या होती है ब्रॉड, चेस्ट ब्रॉड हो जाते हैं, उनकी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है गर्ल्स का। सो बॉयज़ में क्या है, बियर्ड और मुस्टैचेस हो जाते हैं, मगर गर्ल्स में नो बियर्ड एंड मुस्टैचेस। नेक्स्ट इज द टेस्टिस एंड लार्ज इन केस ऑफ द बॉयज़, और गर्ल्स में क्या आएगा, ओवरीज मैच्योर। सो नेक्स्ट इज द सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। अभी एडोलसेंस पीरियड के जो बच्चे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, ये क्या होते हैं, सोशली और इमोशनल इनमें चेंजेस आते हैं। ये सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव रहते हैं, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं बच्चे। कई बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पर रो जाते हैं, बहुत इमोशनल, कई बात हंसने वाली बात उस पर रोने लगते हैं, रोने वाली बात पे हंसने लगते हैं। दीज आर द इमोशनल चेंजेस, राइट? सो नेक्स्ट इज द adolescence related प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस। कई बच्चे क्या है इस पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, जैसे उनकी फास्ट हार्ट बीट चलने लगती है, हेडेक होने लगता है, ब्रीथ फास्ट करते हैं, राइट? किसी न किसी बात पर वो स्ट्रेस हो जाती है, उनको टेंशन में आ जाते हैं। सो इसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर? फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन, ऑब्वियस है कि ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस होने के कारण जो फिजिकल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा और डिक्लाइन हो जाएगा, प्रॉपर जो फिजिकल है मेंटेन नहीं रह पाएगी, उनका बॉडी बैलेंस नहीं मेंटेन रह पाए। नेक्स्ट इज द मेंटल सिम्टम, मेंटल सिम्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर बार सोचे जाना कुछ, तो दैट लीड्स टू द डिप्रेशन स्टेट दैट कॉज द मेंटल सिम्टम। नेक्स्ट इज द वेज टू मैनेज स्ट्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इन चीज़ों को आपने मैनेज कैसे करना है। कुछ बच्चे जो एडोलसेंस पीरियड में कुछ योगा क्लासेस लगाते हैं, मेडिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, मेडिटेशन में ध्यान लगाना, राइट? सोल लाफिंग, कोई को बहुत ज़्यादा हंसने की आदत होती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द स्ट्रेस। नेक्स्ट इज़ अ हॉबी, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉबी में क्या है, कोई भी आपकी जो हॉबी है आप उसको कंटिन्यू रखो, आपने जितनी ज़्यादा स्ट्रेस है उन चीज़ों को ऊपर निकालो। जो कई बच्चों को पेंटिंग की होती है बहुत ज़्यादा हॉबी, कई को गार्डनिंग की हॉबी होती है, राइट? सो जैसे जैसे आप अपनी हॉबी की तरफ ध्यान दोगे, आपकी स्ट्रेस क्या होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी। कई बच्चों को म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस कम होता है। सो दीज आर द डिफरेंट वे टू हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस।